الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين ورحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات. Allah is talking about the religion. أن أقيموا الدين. He wants the religion to be established, and those who follow the religion of Allah be strong and firm in their faith. In order to be strong in your faith as a Muslim, as a believer, as a person who has faith in Allah subhanahu wa ta'ala, you need to recognize Allah, have in-depth understanding about your Creator. How to know your God, your Lord, your Allah, your Rabb, your Nourisher, your Creator. How you can recognize Him. Because He is not seen. Nobody can see Him. He is not visible. You cannot hear Him. You cannot sense Him. So, when you cannot see Him or hear Him, then how can you recognize Him? How can you have any relationship with Allah? You're offering your salat, for example. You say, no, Allah is not visible, I am just offering my salat. To whom? Who is that Allah? Even Allah never said, He never said in the whole Quran that come and recognize me directly. Even if somebody says, no, he has said it in such an ayah, and this means this, gives any interpretation. Look, in this ayah Allah says that come and recognize me. For example, he can see, give this ayah. وَنُرِيهُمْ فِي الْآيَاتِنَا وَنُرِيهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ. We'll show them our signs in this universe. Look here. Allah will show us the signs in this universe. So Allah says, come to me directly. So how do you say that Allah said, come to me directly? Where is it? Here in Quran. If it is in Quran, then how you say it is directly? Did the Quran revealed on you? The Quran was revealed on you? No, it was revealed on Rasulullah.
So why Allah is seeking the medium of Rasulullah to make this message reach you? Allah didn't talk to you directly. So He sought the medium of a Rasul, a book, right? To make this Salat Muhammad. Please come. Come closer. So in order to you recognize Allah, even if you want to give these ayat as references, ayat was never revealed on you. Revealed on a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. And he gave you his message. There is no direct communication with Allah. Nobody can claim that. If you claim it, you're claiming nubuwwat. And if you claim nubuwwat is no more of Rasulullah. And somebody who says that, he is a liar. Right. You say, why he is a liar? Why not somebody can claim today to be a prophet? Here. Look. When we discuss in these 10 days, last 10 nights, on this ayat of Quran, from Surah Shura, we discuss the stories of Quran. These stories, as we learn so many lessons from these stories, one of the lessons that we learn is basic lesson, is that you cannot reach to Allah without the prophets. Shara'a lakum. Lakum, Allah is addressing all Muslims, the entire Muslim ummah. Shara'a lakum. Allah has made this religion, established this religion, Islam, for you. For whom? For you. For you, for you, for me. For all Muslims. Shara'a lakum. So lakum is all of you. Remember. Okay, when he shara'a means he established this religion for all of us. How? Now he takes 5 names. As we did it for Noah. It means deen is for you from me. For you from me. So for and from. Yes, sir. But between this for and from, there are some special people that you cannot ignore them. If you ignore them and say, no, we don't want to seek medium of these people, we will go to Allah directly. Why Allah didn't come to you directly? Are you stronger than Allah to reach to Him directly? No. It is not because Allah cannot hear us astaghfirullah directly. No, because we need to recognize Him through His messengers. This is the rule. This is the rule of Allah. Sunnat Allah. Even in the stories of Musa, you see those stories when Bani Israel many times asked Musa to see Allah. And what happened, I'm not going to go to that story today at least. Otherwise that story is also very interesting and has so many lessons. My point is different for today. So Allah subhanahu wa ta'ala used these messengers as medium between Him and His creation. He did not reveal His ayat to everybody, to us. He did not give us the religion. It is for me, the religion is for me, for you. But He did not give us the religion. He gave it to Noah and said, Noah, give them. He gave it to Ibrahim and said, Ibrahim, now give this religion to the nation. Musa, Isa, and Khatimun Nabiyyin.
Now, question arises here. If this is true that Allah sent His religion through these messengers, then how can we recognize the messenger? If today somebody comes and claims to be a messenger, how can we deny his claim? For that, Allah subhanahu wa ta'ala said, when I send someone, I give him very special authority. And here, we can start a very important issue which is subject to debate among Muslim sects. And it is wilayat. Wilayat means authority. I will give them authority. Two kinds of authorities. One authority in the creation. They will use their power in the creation, in this universe, to show you miracles. Miracle in Arabic is called mu'jiza. Mu'jiza from i'jaz. I'jaz from making other person ajiz. Ajiz means helpless. Nobody else can do it. Only him can do it who is claiming to be a prophet. This is miracle. Magic, if you learn it, you can do it. Science, if you study, do your research, you can discover something. But miracle, without means and equipments and learnings and schools and teachers, you show something which is beyond the ability of a regular human being. This is a miracle. Example of the miracles. As I said, these miracles are showing power in the creation. Remember this. And it is called, in Islamic terminology, vilayat takwini. This is a very vast topic by itself. Vilayat takwini is authority in the creation. There is another wilayat, vilayat tashri'i, authority in making laws. Every Nabi has vilayat tashri'i. Even among Muslims, many accept the vilayat tashri'i of Anbiya and Awliya and A'imma. Yes, they have the authority to tell us what is halal, what is haram. They are making the laws with the will of Allah. They are making the laws. They are lawmakers. They have the authority to make a law. This is tashri'. But can they use their powers, special powers in the creation? People say no. Allah says yes, because I gave them power. I gave them power. And this is very delicate issue of Iman and faith and Aqidah, about Ahlul Bayt as well. Many people get, they wonder about how and why always we should from Mimbar talk about the miracles of Imam Ali. What miracles of Imam Ali is going to help us? Why don't we just talk about regular issues that are going to help us in our life? No issue is going to help you in your life if you don't have real Iman in Ahlul Bayt. As you know my style. We don't speak out of emotions. It's not an emotional issue. It is based on logic and Quranic teachings. Quranic philosophy is there. If you say, no, why you read Khaybar or Khandaq?
Why just these miracles? And why wahwa and subhanallah and nara hadri? What is going to help us in our life? Why don't we speak on issues that we need? What we need? Everybody's need is different. That's why everybody wants that Maulana should read the issue that I am having the issue or the problem, the specific problem. People come to me, Maulana, why don't you speak on this issue? I said, no, you are in this problem, huh? Why don't you speak on this issue? Huh? Okay, I got it. So everybody wants that his issues should be solved. His own issues. What we want from the member, that not individual issues, collectively everybody's issues should be solved through ذكر أهل البيت عليهم. Many people have issues. Everybody has issues. You want everybody's issues to be solved? Conflict resolution. Alright? Family issues. Parents' rights. Children's rights. Neighbors' rights. If you don't know the rights of the one who connect you to Allah, how can you give the rights of the people who connect to you? Look, all those rights, these rights, they are connected to you. Your parents are connected to you. Your children to you. Your brother or sister to you. If you want to pay these rights of your connection, you have to pay the rights of Allah's connection first. Those who are connected to Allah or who connect you to Allah. Again, it is not from me. Let me give you an example of that. So many examples, but since, of course, we are talking on this subject for these, the whole Ashra. Isa alayhi salam, for example, this is one example. Go and read. As I said, my speeches are not in detail, are not detailed discussion. These are just headlines. So you can go and study based on these. Just I gave you, a track of study. An idea how to reflect and think and read and study the Quran. About Isa alayhi salam, for example. And always think, if you were in his time, what would you do? Would you accept him or would you reject him? What would you do? You say, I would accept him, of course. You're saying it today. Why? Because you know about him very much and so much. Think about somebody in your time is coming and saying, I am Allah's Rasul. You didn't hear about him from your childhood, from your parents, from Maulana, from the member, from the Quran, from the book that you believe in. No. Suddenly somebody is coming and saying, I am Rasul. What would you do? Think. It's very hard. Don't think today. It's not today's person I'm asking. I'm asking you, if you were at that time, what would you do? So of course, if you ask me the same question, my answer would be that I would go and investigate first. I would see the person who is saying I'm Rasul, does he has the quality of a person who can be a Rasul? I will examine it for sure first. How? Again, the best, and not best, I think this is the only way to recognize any prophet. This is the only way. What is it? Through miracles. He has to show me a miracle.
Why? Because through miracle, he is not showing me Allah. He is not teaching me about Allah. First, he is teaching me about himself. He is letting me know and recognize himself first. When I recognize him as a Rasul, then whatever he will say about Allah, I will accept it. So first he should show me that he is Rasul from Allah. So what Isa said? أني رسول الله إليكم أني آتيكم بآية من ربكم. I have come with some signs of Allah for you. This is Isa. He is starting with this word. Allah sent me. I'm from Allah. Who knows you are from Allah? No, I'm telling you. How? Because I have some signs from Allah for you. What are those signs? Now he speaks about 4 signs. 4. Reflect on these 4 miracles. And they are in the Quran. And these miracles show the vilayat takwini, the authority of those who are selected by Allah subhanahu wa ta'ala on the universe, their authority, their power. He says, Anni, Allahu Akbar. I know I don't have much time. Anni akhluqu lakum. This surah Al Imran, ayat number 49. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. 4 miracles. One of them is this. أني أخلق. I will create for you. He wants to show us the powers of Creator. But he didn't say, look how Allah is creator, how Allah creates. No, I will create for you. I will create for. أخلق is خلق, from خلق, creation. Look, the word used in Quran is خلق. I will do خلق. Means I am one of the خالقين. So astaghfirullah. He is خالق? Is he خالق? I don't know. Quran is saying أخلق. What should I do? Quran is using this word and Quran is saying فَسُبْحَانَ اللَّهِ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Allah is the best of creators. There are creators, but He is the best of creators. Got it? So He is Ahsanul Khaliqeen. And now Isa is saying, I am one of those Khaliqeen, those who create. Bear with me, okay? Don't get confused. Yeah, this is Quran. And we have to study Quran, as I said, with open mind, open eyes, open heart. Okay? You cannot be just blind and just memorize it. Okay? We have to open our eyes. Read. أَخْلُقُ لَكُمْ. I will create for you. Allah, but you will create what? كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. Every word of Quran is miracle. Just one single word is miracle. أَخْلُقُ لَكُمْ. I will create for you. مِنَ الطِّينِ. Out of clay. Out of clay. كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. Something, a structure, a body which looks like bird. Not bird. I'm not going to create bird. Subhanallah. كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. Something which looks like a bird.
Until here, yeah, Isa, everybody can do it. The children do it every day. They make birds out of clay and they play with those birds. That's why I didn't say I'm going to create a bird. I will create here, I will create until here. Create something like a bird. كهيئة الطير فأنفخ فيه. Then I blow in it. I breathe in it. فيكون. Now it becomes طيرا. Now it becomes bird. Not like bird. Look the process. Look the process of creation. I will create something like bird out of clay. Then I breathe in it. It becomes bird. Why? If you ask him, he will say yes. Because Allah's sunnah never changes. Allah created Adam first. How? Out of clay? He didn't create Adam. He creates a structure like Adam. Then he said to Malaika, فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. When I blow my ruh, my spirit in him, then everybody should bow down and prostrate to him. Okay, the time for English is over, but let me finish this point in English. Then I will turn to Urdu. Bi-idhnillah. This is the end of this part of ayah. I will blow my breath in it. فَيَكُونُ طَيْرًا. It becomes a real bird. A bird that I am making out of clay, it becomes real bird. But how? Bi-idhnillah. With the power of Allah. With the will of Allah. So here, by saying bi-idhnillah, he removed all the confusions. Don't think that I am the real creator. He is the real creator. Then why he is not showing me how he makes the bird? Allah. What? Let Allah show me that look, this way I make a bird and I create a bird. He said no. I will show you, means me and you, regular human being. Allah will show us through His messenger. He will show us His power through His messenger. This is called Wilayat al-Takwini. And the best level and highest level of Wilayat al-Takwini is given to Muhammad Ali ibn Abi Talib alayhi salam. And this is the real meaning of Man kuntu Mawla. Mawla is authority. I am the authority. Aliyun Mawla. Same, we have, both of us have same wilayat, same authority from Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat ala Muhammad wa में विलायते खुद एक मुफस्सल मौजू है, लेकिन आप कुरान का अंदाज और स्टाइल देखें, वो खुदा जो सजा देता है और काफिर करार देता है और जालिम करार देता है उसको जो दावा करे कि मैं खालिक हूं, वही खुदा अपने रसूल की ज़बान से कहलवा रहा कि नहीं मैं खालिक हूं।
मगर क्या फर्क है दोनों में? वो जो खुद मुस्तकिल होकर के है, खुदा से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं खालिक हूं, वो फिरौन बनता है। और जो कहे कि नहीं मेरे पास जो कुछ है खुदा की तरफ से है, वो ईसा बनता है। ये फर्क है दोनों। बस यही फर्क हम हर जगह रखते हैं, और यही फर्क काफिर और मोमिन में है। जो उसको मान ले, फिरौन को और ईसा को रिजेक्ट कर दे, वो काफिर है। और जो ईसा को मान ले, फिरौन को रिजेक्ट कर दे, वो मोमिन है। भाई ये दो लफ्ज सिंबल हैं। ईसा मूसा के दौर के हैं। अगर हम मूसा के आपके सामने जो है मौजूदात बयान कर रहे होते तो वो जिक्र करते, लेकिन ईसा, नमरूद ले लीजिए मुकाबले पर, किसी को ले लीजिए, ईसा के जमाने में जो लोग थे उनके कातिल जिन्होंने इरादे कत्ल किया था उनको ले लीजिए। तो अब पता ही चला कि एक को कबूल करना है, एक को रिजेक्ट करना है। अब डिपेंड करता है कौन किसको कबूल कर रहा है, किसको रिजेक्ट कर रहा है। हमारा उसूल यह है कि हर दौर के फिरऔन को रिजेक्ट करना है, हर दौर के मूसा को कबूल करना है। जो शख्स किसी जमाने में किसी फिरऔन को मान ले, इस्लाम से निकल गया। किसी जमाने में किसी मूसा का इनकार कर दे, इस्लाम से निकल गया। अब समझ में आया हम क्यों एम्फसाइज करते हैं जब ज़ियारत पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम। तो ये जो सारे अंबिया का वारिस है, इसको रिजेक्ट करने वाला तमाम अंबिया को रिजेक्ट कर रहा है। इसके कातिल को मानने वाला और उसको रजी अल्लाह कहने वाला फिरौन को रजी अल्लाह कह रहा है। तो कुरान ने हजरत ईसा की ज़बानी इस आयत में जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 49वीं आयत, इसमें 4 मौजज़ात उनकी ज़बानी बयान किए, जिनमें से एक मौजज़ा ये खल्क़ का मौजज़ा। इस पर बहुत मज़ीद तफसील से गुफ्तगू हो सकती है। एक शख्स आया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उस जमाने में वो दावा कर रहा था कि मैं खालिक हूं। तो लोग इमाम के पास भी आए, इमाम से भी उसने दावा किया कि मैं खालिक हूं। तुम कैसे खालिक हो? कि देखिए, उसके पास एक केमिकल था, उसने मिट्टी में डाला, कीड़े पैदा हो गए उसमें फौरन उसी वक्त। देखें, इन कीड़ों को मैंने इस मिट्टी में डाला, यहाँ अभी मेरा इरादा है, मैं चाहूँ तो यहाँ डाल दो, यहाँ पैदा हो जाएंगे, यहाँ डाल दो, यहाँ पैदा हो जाएंगे। बताइए कहाँ डाल? जहाँ आप बताते हैं मैं वहीं डालूंगा, वहाँ मैं अभी क्रिएट कर दूंगा। अब बहुत से आर्गुमेंट्स हो सकते थे, लेकिन बहुत से आर्गुमेंट हो सकते थे। बस नहीं हो सकता था कि चलो क्रिएट करो, ये केमिकल क्यों डाल दो? यही फर्क है खालिक और मखलूक, यही फर्क है। अगर तुम खुद वसीला इख्तियार करो, चाहे केमिकल का सही, तखलीक में, तो तुम मखलूक हो। खालिक वो है जो वसीला इख्तियार नहीं करता तखलीक में। तखलीक में कहता है कौन फयकून, हो जा, और वो हो जाती है। हो जा, वो हो जाती है। अब इसका रिफ्लेक्शन अल्लाह जिसको अथॉरिटी दे दे वहां हो सकता है, ताकि दूसरे लोग यकीन कर ले कि हाँ ऐसा हो सकता है, खुदा ऐसा कर सकता है। तो इमाम ने इसलिए जान रहे थे कि बहुत से मुसलमानों से और उलमा से गुफ्तगू कर चुका है, स्कॉलर्स से गुफ्तगू कर चुका है, और कोई किसी शख्स की बात इसने तस्लीम नहीं की। तो इमाम ने उससे वो बात ही नहीं की। कहा कि अच्छा तो तुम इसके खालिक हो क्या खालिक के माने समझते हो क्या है? हाँ मैंने पैदा किया इनको। कहा तुमने पैदा किया, तुमको पता है क्या पैदा किया? तुम कैसे खालिक हो कि तुमको यही मालूम नहीं कि क्या पैदा किया? कहा नहीं, ये कीड़े पैदा किए हैं, कीड़े पैदा किए। कहा नहीं, कीड़े नहीं,
ये बताओ इनमें कितने नर हैं कितने मादा हैं? तुमने जो पैदा किए हैं ये मेल है या फीमेल है, इनका जेंडर तो बताओ। काफिर जो है ना वो भूत होकर रह जाता है ना हमेशा, जब ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट आता है। कहा बताओ तुमने बनाया ना, कैसे क्रिएट हो यार, कैसे तुम क्रिएट हो भाई? क्रिएट कर रहे हो, तुमको पता नहीं क्या क्रिएट कर रहे हो। अब जब उसको जवाब नहीं पड़ा क्या सोचने की जरूरत नहीं है। तुमने पैदा किया ना कि हाँ ठीक पैदा तुमने किया है, तुम दावा कर रहे हो, मैंने तो पैदा नहीं किया इनको, मगर मैं तुमको बताऊंगा कि इनमें कितने नर हैं कितने क्या बात कर रहे हैं आप? क्या? हाँ, इमाम ने बिल्कुल बताया कि इनमें इतने नर हैं और इतने मादा हैं। अब वो अली का पोता ही क्या जो फौरन अपने दावे का सबूत न दे। भाई ये बात तो कोई भी कह सकता है ना, ये तो आप भी कह सकते हैं उससे, यहां तक तो हम और आप भी उससे बात कर सकते हैं। इतनी यहां तक की बात कोई भी कर सकता है उससे। बताओ कितने इसमें नर हैं कितने मादा हैं? कुछ नहीं, हम बता दें तुमको इतने हैं उतने। अब कौन गिने, कौन बताए? खैर चलो ये दौर हो जमाना तो उसको लैब में ले जाएं और रिसर्च करें और कोई जरूरी नहीं कि सही रिजल्ट आ जाए। इमामत की लेबोरेटरी दूसरी होती है। थ्योरी और प्रैक्टिकल जो इमामत के सामने होता है वो डिफरेंट होता है। उसी को कहते हैं विलायत तकवीनी। इमाम ने फौरन कहा सुन मैं तुझको बता दूं इतने नर इतने मादा। ये आप कैसे कह रहे हैं? इस तरह कह रहे हैं कि देख खल्क हमने नहीं किया, इनको जिसने खल्क किया है उसने हमें अपनी मखलूकात पर हुज्जत करार दिया है। अपने मखलूकात पर उसने हमको विलायत तकवीनी अता की है। पावर इस कायनात में उसने हमको दिया है। उसने अपनी तमाम मखलूकात से कहा है कि हमारी बात माने, हमारी इताअत करें। तो देख तजुर्बा कर ले। अभी मैं ऑर्डर करता हूं और फरमाया कि जो नर हैं दाईं तरफ चले, जो मादा हैं बाईं तरफ चले। फौरन दो लाइनें बन गई, एक दाईं तरफ जाने लगा एक बाईं तरफ। का तू करके देख, का देख। इतना करने के बाद हम कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे। तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अरे हैदरी, इसको कहते हैं विलायत तकवीनी। ये इतनी मंजिल तक ले जाने के बाद बहुत आसान है किसी के लिए कह देना कि मैं खुदा हूं, मगर जब कभी मौजज़ा आइम्मा ने दिखाया उसका राज ही ये था कि मौजज़ा दिखाते थे, 2 रकत नमाज पढ़ते थे। कभी पहले पढ़ी कभी बाद में पढ़ी, कभी पहले सजदा किया कभी बाद में सजदा किया। क्या कहने हैं? मगर सजदा जरूर किया। सजदा क्यों किया? सजदा किया ही इसलिए कि ये बता दे कि तुम कभी खबरदार किसी ऐसे वैसे को, समझो कीजिएगा, अब मैं दूसरे रूप से बात करना, तुम किसी ऐसे वैसे को खुदा मत समझ लेना, किसी ऐसे वैसे के सामने सजदा न कर लेना। इसलिए कि इस दुनिया में जितने खुदा बनकर आए उनमें से कोई एक भी नहीं जिसके पास पासंग भी वो पावर हो जो हमारे पास है। हमारे पास इतना पावर हो कि भी हम सजदा कर रहे हैं, तो सोचो कि हमारा खुदा कितना पावरफुल है। सलाम अलैहि मोहम्मद
वाह वाह वाह। जनाबे अबू ज़र एक बार जा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन के साथ। जनाबे अबू ज़र की मंजिल क्या है? बहुत बुलंद मंजिल है। असहाबे आइम्मा में उनका मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद। क्या कहने, क्या कहने। जा रहे हैं साथ में, ज़ाहिर है कि उनकी मारिफत कोई मुकाबला कर नहीं सकता। चल रहे हैं, एक ऐसी जगह से गुजरे वादियुन नम, चारों तरफ देखा कि लाखों करोड़ों बेहिसाब चूंटियां। हाँ, जनाबे अबू ज़र ने इतनी बेहिसाब बेशुमार चूंटियां देखकर कहा, सुब्हान अल्लाहि मुहसीहा। क्या कहने। पाक है वो परवरदिगार जो इनकी तादाद से वाकिफ है। कौन गिनेगा इनको? कौन सा कैलकुलेटर आएगा? कौन आकर इनको गिन सकता है कि कितनी चींटियां? पाक है वो परवरदिगार जो इनकी तादाद से वाकिफ है। अजीब अजीब। इमाम ने कहा, अबू ज़र हमारे साथी हो कैसी बात कर रहे हो? बहुत बुलंद मंजिल होती है मेरे दोस्त, इरफान की मंजिलें बहुत बुलंद। क्यों मौला, क्या बात? क्या नहीं, तुमने सही तस्बीह नहीं की, सही तस्बीह नहीं की, इसलिए कि इनकी तादाद से तो हम भी वाकिफ। और वही बात जो छठे इमाम ने फरमाई कि न सिर्फ तादाद से वाकिफ हैं, हम ये भी जानते हैं कि इनमें नर कितनी है वो वादा अब इस जो मौला ने फरमाया इसमें कोई अबू ज़र को शक तो हो ही नहीं सकता था किसी कीमत पर। बात समझ में आई कि बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो जानते हैं कि मौला को ये इल्म है इस बात का, लेकिन कहा फिर मौला मैं कैसे इनकी तारीफ कैसे करूं? अब मौला ने कहा सुभान अल्लाह कैसे कहूं? तो अब सोचें क्या ये कहा होगा सुभान अल्लाह खालिक़हा, पाक है परवरदिगार जिसने इनको खल्क किया है। कुछ कहा नहीं इमाम ने, और न मैं यहाँ कुछ कहना चाह रहा, इसलिए कि ये कह सकते थे कि ये वो पाक परवरदिगार जिसने इनको खल्क किया। अगर वो कह देते अबू ज़र, अच्छा वो भी नहीं, वो भी खामोश है ना, तो हो सकता है वहां भी रोकते थे मौला के खामोश। हम जब ईसा खल्क कर सकते हैं तो फख्रे ईसा खल्क क्यों नहीं कर सकते? बिइज़्निल्लाह ही सही, चलो हम किसी और बहस में नहीं जाते हैं। जब खल्क कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? इमाम ने कहा नहीं, इस तरह नहीं, कहो सुभान अल्लाह बारी। बारी कहते हैं उस खालिक को जो खल्क करे, खल्क करने के बाद आखिरी लम्हों तक उसकी परवरिश भी करे। कहा सुभान अल्लाह बारी को, पाक है वो परवरदिगार जिसने खल्क भी किया और इनको दे भी रहा है। आखिरी लम्हों तक इनकी जिंदगी का सबब भी बना हुआ है परवरदिगार की तरफ से अताए हयात है। क्या कहें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये को अल्लाह की बात, वो है सब कुछ, वो बारिक बारिल खलाइक अजमाइन, पूरी कायनात का बारिक खालिक। और बारिक में और खालिक में एक और फर्क ये भी है, बारिक कि खालिक ईसा जैसा हो सकता है, जिसने कहा अखलुकु लकुम मिनत्तीन, क्या कहने, क्या कहने, मैं क्रिएट करता हूं इस चीज को इस चीज से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इस चीज को इस चीज से। क्या कहने, मैं हैअतुत तैर क्रिएट कर रहा हूं मिनत्तीन, यानी कोई चीज है उस चीज से मैं कोई चीज बना रहा हूं तो खालिक हूं। बारे वो है जो बनाता है नथिंगनेस से, तो वजूद में, वजूद से वजूद में लाना मुमकिन है। कोई कहे कि मैं खालिक हूं, इसलिए कि उसने वजूद से एक और वजूद बनाया, सुभान अल्लाह, लेकिन अदम से वजूद में लाना
ये बारी का काम है, ये सिर्फ अल्लाह का काम है। सलावत भेजे मोहम्मद। तो ये जो मौजिज़ात होते हैं ना, ये मौजिज़ात क्यों पढ़े जाते हैं? आप यकीन जाने जहाँ मौजिज़ात नहीं पढ़े जाते हैं वहाँ दीन है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेदीन है लोग, नहीं, काफ़ी दीनदार, खुश्क दीन, खुश्क सतही दीन है, ऊपर ऊपर से कलर खाली दीवार, अंदर कुछ नहीं, खोखले हैं अंदर। देख लीजिए आप, देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जहाँ नसीहतों के साथ, जहाँ फुरूए दीन की बातों के साथ उसूल दीन और असले उसूल की बात न हो। वहाँ कभी भी भटक सकते हैं, कभी भी इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मुअजिज़ात अल्लाह ने बयान किए हैं। अल्लाह को रोको, या अल्लाह कहाँ हज़रत ईसा की, बस खत्म कर, इतने मुअजिज़ात, बस कहते कि नबी है, आगे बढ़ो। ईसा से कहो, ईसा आए और सबसे क्या, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, अच्छे काम करो, नेक काम करो, बस उनको कहना चाहिए। अब आगे मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरा ये मौजिज़ा है, मेरा ये मौजिज़ा है। या अल्लाह इतने मौजिज़े ही बयान होते रहेंगे, खाली सिर्फ मौजिज़े? तो अल्लाह कहता है कि देखो, ईसा ने आते ही कतअन ये नहीं कहा कि तुम कैसे लोग हो, इल्जाम लगाते हो दूसरों पर, अल्लाह से डरो, खौफ करो। नसीहत की कोई नसीहत नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई स्पीच नहीं, कोई सेमिनार नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं। क्या कहने वाला ना, फिर क्या किया? कहा हमें पहचानो, पहचानो मैं कौन, मुझे पहचानो, इन्नी अब्दुल्लाह। तो जो कीजिएगा, बदतरीन कौम थी वो जिसने इल्जाम लगाया था जनाब मरियम पर। इस इल्जाम का जवाब ये नहीं था कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बुहतान का ये गुनाह है, इल्जाम लगाने का ये गुनाह है, तुम गुनाहों से बचो, नेक काम करो, तुम कैसे लोग हो, अल्लाह से डरो, कुछ नहीं। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। मतलब यह है कि जो तुम गुनाह कर रहे हो उसका रीजन ही यह है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, मुझे नहीं पहचाना। अब समझ में आया, अल्लाह अकबर, क्या बात कहां से कहां पहुंची है, तवज्जो कीजिएगा। अब समझ में आया कि जब मेरे मौला मदीने से निकले तो ये नहीं कहा कि मैं लोगों को दीन सिखाने जा रहा हूं, नमाजें पढ़वाने जा रहा हूं, रोजे रखवाने जा रहा हूं। नहीं, किसी भी खतीब ने करबला के बाद जनाब ज़ैनब का कोई खुदा उठा के पढ़िए, कहा कि तुम नमाजें पढ़ा करो, कहा रोजे रखा करो। जनाब सैयद सज्जाद ने यजीद के दरबार में, भाई बुराइयों की जड़ है वो यजीदियत, काबिल से, बल्कि शैतान से स्टार्ट कीजिए, शैतान से लेकर और यजीद तक तमाम बुराइयों का खुलासा था वहां। अब उन बुराइयों को कैसे खत्म किया जाए? क्या वजह है कि ये यजीद आज यजीद है? क्या वजह है कि ये जो जालिम है आज जालिम है? तो कहते कि भाई तुम अल्लाह से क्यों नहीं डरते हो? अल्लाह को मानो, तुम लोग रसूलुल्लाह को मानो, तुम लोग नमाजें पढ़ा करो, हज पे जाया करो, थोड़ा सा कुछ वहां सीखोगे, दुआ किया करो अल्लाह की बारगाह में, मुसल्ले पे बैठा करो, ज़कात दिया करो। कुछ नहीं, क्या कहा? मन आरफनी फक़द आरफनी। यजीद, तू यजीद है ही
फिरऔन, नमरूद, हामान, कारून और दुनिया के आज तक जितने भी शयातीन गुजरे हैं उनका वारिस है ही इसलिए। तेरी बुराई है कहां? मन आरफनी फकद आरफनी वमन लम यारिफनी फाना उअर्रिफुहु नफ्सी। जो मुझे पहचानता है वो तो पहचानता ही है, जो नहीं पहचानता मैं उसे पहचानवाता हूं कि मैं कौन। मैं पहचानवाता हूं कि मैं कौन। आओ मैं तुमको बताऊं कि मैं कौन। जब समझ जाओगे कि मैं कौन, उसके बाद फिर खुतबा है, वो अजीम खुतबा वक्त नहीं है। क्या क्या खुतबा है मेरे आका का, सुभान अल्लाह। अन इब्न मक्का व मिना, अन इब्न ज़मज़म व सफा। क्या ये नहीं कहा कि जाओ जाकर हज करो, जाओ सफा और मरवा के दरमियान सई करो, का नहीं। मुझे पहचान लोगे तो सफा और मरवा को समझोगे क्या है। मुझे पहचानोगे तो मक्का और मिना समझ में आएगा कि क्या है। ये जो तुम्हारी समझ में दीन नहीं आ रहा है उसका रीजन यह है कि तुम मुझे नहीं जानते। यही ईसा ने कहा था, यही वारिस ईसा ने कहा। ईसा भी तो ये कह रहे थे यहूदियों से कि तुमने मेरी मां पे इल्जाम इसलिए लगाया कि तुम मुझे नहीं जानते। लिहाजा अब तुम्हारा इलाज ये नहीं है कि मैं तुमको ये नसीहत करूं वो नसीहत करूं, तुम्हारा इलाज ये है कि मैं तुमको बताऊं कि मैं कौन हूं। तो बुराई जब तवज्जो की जगह इंतहा पर पहुंचती है तो उसकी नसीहत ये नहीं है क्या कह रहे हैं जो हम और आप समझते हैं। उसकी नसीहत सिर्फ यही है कि उसको बताएं कि अली कौन है, हसन कौन है, हुसैन कौन है। जब उनकी समझ में ये इम्मा आ जाएंगे उनकी समझ में पूरा दीन आ जाएगा। बातों में कुछ ऐसे जो है मज़ामीन आ जाते हैं कि अल्लाह अकबर, यानी ये खुद एक मजमून है अलग कि आप देखें वो तमाम खुतबे शुरू से जब से, यानी यूं कहना चाहिए एक लफ्ज में कि मदीने से मदीने तक जितने खुतबे हैं, जिसके भी खुतबे हैं अलग सबको उठा के पढ़िए। करबला ना बड़ा कारनामा कायनात का सबसे बड़ा किस लिए हो रहा है। अब आप कहेंगे इसलिए गए थे और इसलिए गए थे। इमाम ने खुद बयान किया कि मैं किस लिए गया। लफ्ज़ अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर इस्तेमाल किया है मगर किस मफ़हूम में इस्तेमाल किया है। कहा कि मैं लोगों से पूरा कलमा पढ़वाने जा रहा हूँ, बस यही तमाम करूंगी, नहीं तो अगर मैं बोलता रहा तो बहुत बातें निकल जाएंगी। मैं लोगों से पूरा कलमा पढ़वाने निकला। इन्नी लम अखरुज अशरन वला फक़रन वला ज़ालिमन वला मुफ़सिदन व इन्नमा खरजतु लितलब अल-इस्लाह फी उम्मति जद्दी। वो जो इस्लाह की बातें करते हैं जरा इस्लाह का मफ़हूम समझे क्या है। इस्लाही बातें कीजिए, इस्लाह है क्या पता तो चले। आओ देखो हुसैन तुमको बताएंगे इस्लाह क्या। फरमाते कि मैं इसलिए निकला हूं ताकि उम्मत जद में इस्लाह करूं। इस्लाह नमाज पढ़ाने निकले, रोजा जिहाद और हज क्या करने निकले आप, ये इस्लाह है क्या। तो फरमाया था उरीदु अन असीरा बसीरत अबी बसीरत जद्दी व अबी अमीरुल मोमिनीन। मैं निकला हूं ताकि अपने जद की सीरत पर अमल करूं, अपने बाबा अमीरुल मोमिनीन की सीरत पर अमल करूं। क्या तवज्जो कीजिए, यानी क्या मतलब
मतलब यह है कि सब कुछ है उम्मत के पास, न सीरत रसूल है न सीरत अमीरुल मोमिनीन। लिहाजा अगर तुमको कोई कलमा पढ़ते हुआ नजर आए तो उसका कलमा नाकिस है। मैं जो कयाम कर रहा हूँ वो मुकम्मल कलमे के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहे, अलीयुल अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह भी कहे। जो है जाने मुहतरम, और यही हुआ और करबला इसीलिए थी। बहुत मेरे सामने दलीलों के दफ्तर खुल रहे हैं, मगर मुझको यही रुकना है कि ये करबला किस लिए थी। कल आशूर का दिन गुजर गया। हुसैन जिस मकसद के लिए आए थे यकीनन उसमें कामयाब हुए, मगर आज जिस यकीन से हम कह रहे हैं ना कि कामयाब हुए, इसमें भी कोई शक नहीं कि इस कामयाबी का इंतजाम तो खुद हुसैन ने किया। हुसैन जानते थे, रात को मोहलत मांगी ताकि अंधेरे में ऐसा कोई वाकया न हो जाए कि कल मशकूक रहे और लोग न समझ सकें हुआ क्या था। दिन के उजाले में होगा जो कुछ होगा। रिवायत दुश्मनों से भी आएगी, वो भी बताएंगे हमने क्या देखा करबला, वो भी बताएंगे हमने क्या देखा। मैंने शिमिर की रिवायत आपको सुनाई थी, उसने बताया कि ज़ैनब उसकी मोहब्बत हुसैन से कैसी लेकिन हुसैन का इंतजाम क्या था? इस्लाम बचा लिया हुसैन ने, मगर हुसैनियत खतरे में आ गई। अब वक्त का टायरेंट चाहता है कि हुसैनियत को दबा दे, तो हुसैन पहले इंतजाम करके चले। मैं अकेला नहीं जा रहा हूं। जब लोग मशवरा देने आए, मदीने से हुसैन चल रहे थे, तो किसी ने मशवरा दिया, हुसैन जब आप जाने पर आपने जाने का तहैया कर ही लिया तो अब हम क्या करें? लेकिन एक गुजारिश ये है कि हुसैन अली की बेटियों को साथ में ले जाए। मशवरा देने वालों में इब्ने अब्बास शामिल हैं। इब्ने अब्बास का मशवरा सुना हुसैन ने, जवाब देने से पहले एक और जवाब आ गया। पर्दे से एक आवाज आती है, इब्ने अब्बास मेरे भाई को ये मशवरा देते हो, क्या ये मुमकिन है कि बहन भाई को छोड़? बिल्कुल ये मुमकिन नहीं था कि बहन भाई को छोड़ देती या भाई बहन को छोड़ देता, इसलिए कि ये मकसद मुकम्मल नहीं होने वाला था एक दूसरे के बगैर। क्यों? इसलिए कि कल आशूर का दिन तमाम हुआ असर पर। जिस वक्त आवाज आई है हुसैन भी करबला, इस कारनामे का एक हिस्सा पूरा हो चुका है, लेकिन अब यहां से जिहाद का एक नया रुख शुरू होता है, एक नया अंदाज जिहाद शुरू होता है। कल तक जिहाद कौन था? सालार काफिला हुसैन इब्न अली। अब सालार काफिला दो हैं, सज्जाद और ज़ैनब। सज्जाद और ज़ैनब, अगर ज़ैनब अल्लाह अली की बेटी है ना, और उसी सज्जाद की फूफी भी है, इस्मत की उस मंजिल पर नहीं है जिस पर 14 है, दुरुस्त है, लेकिन उस मंजिल पर इस्मत की जरूर है कि यही मासूम ये कहता है, फूफी अम्मा अंति आलिमतुन गैर मुअल्लिम, आप आलिम गैर मुअल्लिम। कोई शख्स आलिम गैर मुअल्लिम नहीं हो सकता जब तक मासूम ना हो। बड़ी बारीक बातें हैं। सैयद सज्जाद, अब बताए मैं किसको कहूं कि सालार काफिला था? इमामत तो सज्जाद की है, मगर हिफाजत ज़ैनब की है। हिफाजत ज़ैनब की, यही वजह है
रात भी गुजर गई, आशूर के बाद की रात जिसे शाम गरीबा, गरीबों की वो रात, यतीमों की वो रात, बेवाओं की वो रात कैसे गुजरी खुदा ही जाने। मगर जब सुबह होती है और जालिम फिर आते हैं, खेमे जल चुके, बीबियां उन्हीं जले हुए खेमों पे बैठी हुई, बच्चे अभी भी भूखे और प्यासे हैं। और अब वो मंजिल आती है, जिहाद का वो रुख, ज़ैनब ने वो जिहाद किया है जो अभी तक ऐसा जिहाद हुआ ही नहीं था। हुसैन का जिहाद हुआ है इससे पहले, हुसैन सिर्फ वो जिहाद को पीक पर ले गए, मगर ज़ैनब ने वो जिहाद शुरू किया है जो नहीं था इससे पहले, जिस अंदाज का जिहाद। हाँ, ये कहा जा सकता है कि हो सकता है आप ये कहें कि उसी जिहाद का तसलसल है जो माँ ने शुरू किया था दरबार में जाकर, मगर पर्दे की क्या कैफियत थी कि चारों तरफ एक झुरमुट में नकाब पोश बीबियों के दरमियान में एक नकाब पोश बीबी मस्जिद में जाती है और दरमियान में एक पर्दा भी लगा दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि ज़हरा बोलेगी, खुतबा देगी ज़हरा मस्जिद में, मगर कूफे का खुतबा कुछ हो, शाम का खुतबा कुछ हो। 11वीं की सुबह अब ज़ैनब हुसैन बन गई है। कल तक हुसैन थे, अब्बास थे, अली अकबर थे, आज सारी जिम्मेदारियां ज़ैनब की हैं। इसलिए तारीख कहती है कि जब अहले हरम को असीर करने के लिए आए और ज़ैनब ने शिमर के हाथ में रसन देखी और देखा कि बेकजावा ऊंटों को लाया गया है बीवियों को सवार करने के लिए, अल्लाह रे शुजाअते बिन्ते अली, एक मर्तबा आवाज दी, शिमर क्या चाहता है? कहा तुम अब हमारे कैदी हो, हम तुम सब कैदियों को इस पर सवार करेंगे, आओ चलो सवार हो जाओ। कहा खबरदार, कदम आगे न बढ़ाओ, हम अली की बेटियां हैं, हम ज़हरा की खुजादियां हैं, हम रसूल की आल में। ठीक है, ये तो वक्त की बात है कि अब्बास नहीं रहे, ये तो वक्त की बात है कि मेरा अकबर नहीं है, मगर ज़ैनब अभी भी अब्बास की बहन है और ज़ैनब अभी भी अकबर की फूफी है और ज़ैनब अभी भी हुसैन की बहन है और ज़ैनब अभी भी अली की बेटी है। मैं सवार करूंगी बीबियों को, तू बाहर खड़ा रहे, अलग रहे। एक एक बीबी को सवार किया, आओ बीबी सवार हो जाओ, आओ बीबी सवार। बीबियां सवार होती रही, हुक्म है, शहजादी का हुक्म है, किसी का दिल नहीं चाहता कि सवार हो जाए और शहजादी सवार करें, मगर हुक्म आ रहा है हर तरफ से, चलिए आप सवार हो जाइए। आइए बीबी नवाब सवार हो जाइए, बीबी उम्मे लैला आप भी सवार हो जाए, आओ बहनों में कुलसूम बस अब तुम भी सवार हो जाओ। सब सवार हो चुकी, एक बूढ़ी बीबी रह जाती है, हाथों को जोड़ के अर्ज करते हैं सबको सवार कर लिया, मुझसे मत कहना शहजादी, ये हुक्म मुझे मत दे देना। कहा अम्मा फिजा, अब मैं आपसे भी कहूंगी। कहा शहजादी, ये कैसे हो सकता है, बचपन से आपको पाला है, गोदों में पाला है मैंने आपको। कल क़यामत के दिन अगर आपकी माँ ने पूछ लिया क्या करबला जाकर हमारी खिदमत छोड़ दी थी, तुम्हें क्या जवाब दूंगी? माँ का नाम सुना, माँ का नाम सुना। ज़ैनब ने कहा हाँ हाँ बीबी, अब आपको उसी माँ का वास्ता, आज आपको सवार होना है, इसलिए कि आज ज़ैनब ज़ैनब नहीं, आज ज़ैनब अब्बास है। आज ज़ैनब वो कर रही है तो मदीने से चलते हुए अब्बास ने किया था।
आज ज़ैनब को वो करना है जो हुसैन ने किया था। वास्ता मिला इतना बड़ा, रोते हुए फिजा सवार हो गई। अब बीबियां, ये कैदी बीबियां सवार हो गई, आले मोहम्मद के कैदी। मगर जब सवार सब हो चुके, अब ज़ैनब तन्हा। अब ज़ैनब को कौन सवार करे? फनज़रत यमीनन व शुमाल। हुसैन की बेकसी को याद कीजिए, असर आशूर, वही बेकसी आज ज़ैनब की है। कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है, आवाज देती है, मेरे लाल अकबर आओ खूबी को सवार करो, कासिम आओ सवार, मौला मोहम्मद भैया अब्बास किस शाम से लेकर चले थे मदीने से, आओ ज़ैनब को सवार करो। कोई ज़ैनब को सवार करने वाला नहीं। एक एक को आवाज देती हैं, और एक मर्तबा तड़प के, जब कहीं से आवाज नहीं आई तो तड़प के नशेब की तरफ रुक करके आवाज दी, मेरे गैरतदार भैया। याद है ना, कल ही की तो बात है, तुम भी अकेले रह गए, तुम्हें भी कोई सवार करने वाला नहीं था भैया। याद है ना, किसने तुम्हें सवार किया था? इस बेकस बहन ने तुम्हें सवार किया। भाई आओ, अब कोई ज़ैनब को सवार करने वाला, आकर अपनी बहन को सवार करो। अभी ज़ैनब तड़प के हुसैन को आवाज दे ही रही थी, एक नहीफ सी आवाज आती है, उसी लहजे में जो ज़ैनब का लहजा था कल हुसैन के लिए। फूफी अम्मा, मेरे भैया अकबर को आवाज न दे, मेरा भैया सीने में बर्ची खाया पड़ा है, कासिम को न पुकारे, पामाल हो चुका है लाशा। अब्बास को आवाज न दे, मेरे चचा को शाने कलम हो चुके हैं, और मोहम्मद को न बुलाएं, आराम से सो रहे हैं। मगर फूफी अम्मा घबराए नहीं, अगर अकबर नहीं, अकबर का भाई आएगा, कासिम का भाई सवार करेगा, अब्बास का भतीजा सवार करेगा, हुसैन का वारिस सवार करेगा। ये कह के हथकड़ियां बेड़ियां संभाली, आगे बढ़े, शाने को झुकाया। फूफी अम्मा कदम तो रखे इस शाने पर, आइए सवार हो जाएं। ये वही सज्जाद है जिसे कल यही ज़ैनब उठाकर लाई है, मगर अल्लाह ने पर्दे की अज़मत आले मोहम्मद की नजर में कि ज़ैनब ने अपने पर्दे की वजह से न जाने किस दिल से ज़ैनब आमादा हुई, आगे बढ़ी शाने पर कदम रखने के लिए ताकि सवार हो जाए। मगर कदम रखने से पहले एक मर्तबा नजर करो किया, या अली अपने इस बीमार को इतनी ताकत दे दो अपनी भूमि को सवार कर सके। सज्जाद ने भी कहा होगा, या अली मुझे ताकत मिल जाए, भूमि को सवार किया, काफिला चला, खुदा हाफिज या हुसैन, करबला के शहीदों, करबला के असीर मिले हैं, कुफे का दरबार होगा, शाम का बाजार होगा, और ये असीर परवरदिगार इस इदारे पर, इस इदारे में जिसने जिस तरह भी किसी तरह दामे देने को खिदमत की है, उस पर, सामेईन पर, और यहाँ पर आकर जो मौला का जिक्र करते हैं उन सब पर अपनी रहमत और बरकत नाज़िल। जहाँ जहाँ मोमिनीन आबाद हों, कौम नमान सुकून का नाम। पाकिस्तान के जो मोमिनीन इस वक्त इन जालिमों की ज़द में हैं, यजीदियों को नाबूद फरमा। जहाँ जहाँ अहले बैत के मानने वाले आबाद हों, उनको नवाम सुकून का रहमत फरमा। खुदावंदा हमें
इताअत अहले बैत की तौफीक कराम फरमा, हमारे दिलों में इश्क व मोहब्बत व मारिफत अहले बैत में इज़ाफ़ा फरमा, अपने आप में हमारे आखिरी इमाम के दुरूद में तारीफ़ फरमा, उनके औन व अंसार में दाखिल शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल